سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو تجویز آج کے عظیم الشان اجلاس میں پیش کی گئی، جس کے اندر گنبد خضرا کے تحفظ، سنی اوقاف کے تحفظ اور معرف القرآن کی اشاعت، معرف القرآن کو گھر گھر پہنچانے کی جدوجہد، یہ جو تجویزیں پیش کی گئی ہیں، جن پر میں نے اور مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور دوران تقریر شیخ الاسلام نے جسے ٹچ کیا، ان تجویزوں میں آپ کا اتفاق خیال ہے؟ گنبد خضرا کا تحفظ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سنی اوقاف کی حفاظت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہم اپنی طاقت اور ایکتا کی طاقت سے حکومت کو مجبور کریں جو ہمارے حقوق کو تلف نہ کرے اور اہل والوں کو نہ دے کر نااہلوں کو دینے کی روش کو بند کرے۔ تو اگر آپ کو اس تجویز سے اتفاق ہے تو ہاتھ اٹھائیں، جن حضرات کو اس تجویز سے اتفاق ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اس طرح سے اکثریت نے ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم محدث اعظم کانفرنس کی پیش کردہ تجویز کو پوری طریقے سے دیتے ہیں آپ کی سنسٹی سے، اور جن کو یہ ہے کہ نہیں گنبد خضرا گرا دیا جائے یا سنی اوقاف سنیوں کو نہ ملے، معاذ اللہ جو گرانے، اگر اس میں کوئی ایسا بھی ہو تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے جو گنبد خضرا کو گروانا چاہتا تاکہ ہم اس کو نہیں گرا کر کے تسلیم کرتے۔ ایک سنی نوجوان نے بات، میں یہ نہیں کہتا کہ گنبد خضرا گر جائے گا اور میں یہ بھی نہیں کہتا نہیں گرے گا، میری دلی تمنا تو یہی ہے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، میرا جی یہی چاہتا ہے کہ گنبد خضرا ہے اور رہے۔ لیکن میں بڑی سنجیدگی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر دشمنوں نے اسے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے دباؤ پر گرا دیا تو ہم نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہم ایسے عقیدے والوں کا وجود برداشت نہیں کریں گے، ہم گنبد خضرا کا بدلہ ہندوستان میں لیں گے، یہ ہم نے کہہ تو دیا ہے، لیکن اس پر عمل کیسے ہو؟ اس کے لیے سیدھی سی بات ہے، تمہارے پاس بال بچے ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، گھر ہے کاروبار ہے، ہاشمی کے پاس بھی جان ہے، میرے پاس بھی گھر ہے، میرے پاس بھی لڑکا ہے، میرے پاس بھی لڑکی ہے، میں بھی بیوی بچوں والا ہوں، تم بیوی بچے والے ہو، میں بھی بیوی بچے والا ہوں، تم بھی جوان ہو، میں بھی جوان ہوں۔ میں محدث اعظم ہند کی کانفرنس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر گنبد خضرا گرایا گیا تو میں اپنا تاج اتار کر سڑک پر آؤں، جو بندیت کے قصر کو ہلانے کے لیے اپنی جان کو باقی لگاؤں گا، مگر نوجوانوں گجرات کے تم بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے؟ یاد رکھنا، ہم نے روٹی کے لیے پیٹ کے لیے جیل بھرا ہے، گنبد خضرا کے لیے صرف جیل نہیں بھریں گے بلکہ پھانسی کے پھندے کا بوسہ لیں گے، ہم پھانسی کے پھندے پر جھول جائیں گے۔ اس لیے مجھے بتاؤ، آج حکومت سے گجرات میں نہ جانے کتنے آندولن کرے ہیں، آزادی کے لیے سوتنترتا سنگرام ہوا ہے، فریڈم فائٹرز ہوئے ہیں، بھارت کی آزادی کے لیے لڑائی لڑے ہیں، مگر گنبد خضرا کی آزادی کے لیے جب ہم لڑائی لڑیں گے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہندوستان کے لیے اگر ہم جیل بھرنا جانتے ہیں تو رسول اللہ کے گنبد خضرا کے لیے ہم پھانسی پر لٹکنا جانتے ہیں۔ ہمارا گنبد خضرا سرکردہ مبارکہ ہمارے پیٹ کا سوال نہیں ہے جو جیل بھر کر کے ہم لوٹا ہے، یہ ہماری آبرو اور ایمان کے امتحان کا سوال ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی بازی دینی ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ سب تیار ہے، سب تیار ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اگر گنبد خضرا کے گرنے کے بعد بھی اٹھے رہے تو پورے ہندوستان کو غدار رسول سے پاک کر دیا۔
सांप्रदायिकता के धब्बे लगने नहीं देंगे तो अपने ईमान पर भी रसूल की गद्दारी का दाग लगने नहीं देंगे। तो बस ठीक है, अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो। हमारे दुश्मन के पास दो असलहे हैं, एक तो उनके जितने अकीदे वाले हैं, आपस में एक है, चाहे वो थाना भवन के मुरीद हो, चाहे वो नानौता के मुरीद हो, चाहे वो सहारनपुर के मुरीद हो, चाहे वो देवबंद के मुरीद हो, चाहे वो अपने को साबरी कहें या नक्शबंदी, आपस में वो पीर अलग अलग रखते हैं। किसी का पीर तांडवी है, किसी का थाना भवनी है, किसी का नानौतवी है, कोई किसी का पीर अम्बेडकरी है, कोई मुरीद हो गया मऊनाथ भंजन के किसी भी आदमी से, कोई मुरीद हो गया इलाहा प्रतापगढ़ के किसी पीर से। उनके पीर सैकड़ों है मगर मुरीदीन आपस में एक। तो जब बातिल मुरीदीन मुख्तलिफ पीर एक हो सकते हैं तो हम हक पीर रखते, सच्चे पीर रखते, सच्चे ईमान वाले आपस में एक क्यों ना हो जाए। अगर वो बेशुमार पीरों को रखकर आपस में एक है तो हम भी आपस में कादरियत, चिश्तियत और अहमदियत, अशरफियत और रज़वियत आपस में एक है। और सुनो, ये सुल्तानुल हिंद की धरती है, ये चिश्तियत का गुलशन है, और जितने बाहर से आज ये सिलसिले हैं इसको गरीब नवाज ने पसंद किया। अगर गरीब नवाज ने कादरियत को पसंद न किया होता तो कोई कादरी पीर यहाँ जम नहीं सकता। हिंदुस्तान का सुल्तान गरीब नवाज है, हिंदुस्तान का मालिको मुख्तार गरीब नवाज है, हिंदुस्तान का दाता गरीब नवाज है, हिंदुस्तान का मुख्तार गरीब नवाज है, हिंदुस्तान में अताए रसूल गरीब नवाज है। लेकिन मेरे गरीब नवाज को सिलसिले कादरिया इतना पसंद है कि जो कादरी पीर आया उसे जमीन दिया, जो अबू और जो नक्शबंदी आए उन्हें जमीन दिया, नक्शबंदियों को बसाया, सोहरवर्दियों को बसाया, कादरियों को बसाया। गरीब नवाज ने जैन दे दिया। पीर अलग है मगर पीर की तनवीर एक है, पीर की तालीम एक है। इसलिए एक कादरियों उठो, चिश्तियों उठो, अशरफियों रज़वियों कांधे से कांधा मिलाकर उठो, फेंक दो उन लोगों को, कोर्ट की नाक पर मार दो उन ताकत को जो हमारी एकता में रुकावट हो, जो हमारे इत्तेहाद के मुखालिफ हो, जो हमारी एकता के दुश्मन हो, वो चाहे अपनी सूरत में हो या गैर की सूरत में हो। ऐसे अनासिर के धज्जियां उड़ा दो, हाथ से हाथ मिलाओ, कांधे से कांधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ और एक हो जाओ। एक तो ये जरूरी है कि दुश्मन के पास इत्तेहाद की ताकत है, तुम्हारे पास भी जवाब में इत्तेहाद की ताकत होनी चाहिए। उनके पास अक्ल शऊर है, तुम्हारे पास भी अपने जोश में होश होना चाहिए और होश में जोश होना चाहिए। मैं उस होश का कायल नहीं जिसमें जोश ना हो, ऐसा होश बुज़दिली है, मसलहत पसंदी है, बस क्या के हथियार डाल देना है और बहते हुए धारे की तरफ बहने के इरादे का नाम हो। मैं उस जोश का भी कायल नहीं जिसमें होश ना हो। ऐसा जोश जुनून है, ऐसा जोश दीवानगी है, ऐसा जोश दीवानापन है जिसमें होश ना हो। तो होश में जोश की जरूरत है और जोश में होश की जरूरत है। उन्होंने तस्लीमुल कुरान को पहुंचाकर जिस तरह मौजूदियत को घर घर पहुंचाया है, तुम भी कसम खा लो, पक्का इरादा कर लो, दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ विल पावर को अप्लाई करते हुए पक्का इरादा कर लो कि मौजूदियों तुम तस्लीमुल कुरान को क्या घर घर पहुंचाओगे। नबीपुर की इस कॉन्फ्रेंस के सत्ते में हम मारिफुल कुरान जो तर्जुमे मोदी साहब हम उसे घर घर पहुंचा देंगे। ये जवाब है इल्म का इल्म से, विचारधारा का जवाब विचारधारा से, कुरान के तर्जुमे का जवाब कुरान के तर्जुमे, अकीदे का जवाब अकीदे से, नजरिए का जवाब नजरिए से। तो जब वो अपनी मौजूदी तफसीर लाएंगे तो हम सैयदी तफसीर पेश करेंगे। जब वो गैर की बात करेंगे तो हम अपने की बात करेंगे। जब वो मस्जिद बारगाह मुस्तफा की तफसीर लाएंगे तो हम महबूबे बारगाह मुस्तफा की तफसीर लाएंगे। तो
तारीफुल कुरान के सिलसिले में आपने जो इरादा किया, मैं उस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने 1 लाख सुन्नी मुसलमानों को बंबई में जमा करके सऊदी सफारत खाने का घेराव किया था। ये उस जमाने की बात है जब गोधरा में इज्तिमा कोई कर रहा था। बाहर के पैसे से गोधरा को इज्तिमा हो रहा था। मैं उसी वक्त आया और गुजरात में मैंने गुंबद खजरा के ताल्लुक से अपने उस इरादे को बढ़ाया। मैं तन्हा हूं, मैं तन्हा मर जाऊंगा, मैं मर करके अपनी जिंदगी बना लूंगा। गुंबद खजरा पर अगर नाज़ल्ला चोट आ गई और हाशमी ने अपनी जान दे दी तो ये मेरी तरह कुर्बानी होगी, मगर इससे इतिहास नहीं बन पाएगा। इतिहास बनाना है तो करोड़ों जवानियों को सड़कों पे तापना होगा कि दुनिया समझ ले कि ये गुंबद खजरा हमारे सुकून से नहीं, हमारे खून से बना है। तब ये इरादा एक इतिहास बनेगा वफादारी का, एक दास्तान तैयार होगी मोहब्बत नबवी की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खोखले शब्दों की मोहब्बत की जरूरत नहीं है, अमली मोहब्बत की जरूरत। मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस आपको ये पैगाम देती है कि रसूल से मोहब्बत पूछ कर करो, अपने पैसे से ज्यादा मोहब्बत करो रसूल से, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो रसूल से, अपनी जायदाद से ज्यादा मोहब्बत करो रसूल से, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करो रसूल से। और जब रसूल से मोहब्बत, तो उनके घर से मोहब्बत, रसूल के रोजे से मोहब्बत, रसूल के गुंबद से मोहब्बत, रसूल की मस्जिद से मोहब्बत, रसूल की आल से मोहब्बत, रसूल की औलाद से मोहब्बत, रसूल के आज़ाद से मोहब्बत, रसूल की उम्मत से मोहब्बत, रसूल के वफादारों से मोहब्बत। और ये मोहब्बत का इम्तिहान है कि अगर गुंबद खजरा पर हमला हो रहा है तो यकीनन वो हमारी नजरिए पर हमला हो रहा है। उसके लिए हमको अपनी जान को हथेली पर रख करके आगे बढ़ना होगा। मैं सिर्फ इतना कह करके गुजर जाना चाहता हूँ कि मैं गुजरात वालों तुम्हें इत्तला दूंगा, और नहीं तो तुम्हें तो बहरहाल ये पता चल ही जाएगा कि माज़अल्लाह गुंबद खजरा गिरा दिया गया। इस खबर के बाद न किसी मीटिंग की जरूरत है, न किसी कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। ये जान लेना ही तेरे लिए काफी है कि अब तुझे क्या करना है। तुझे वही करना है जिसके लिए तुमने हाथ उठाया। हम अपने बाप से पूछने नहीं जाएंगे तब, इसलिए कि बाप से ज्यादा मोहब्बत जिस रसूल की है, फिर अब किसी से पूछने की क्या जरूरत है। बाप के नीचे कोई हो तो बाप से पूछा, औलाद से नीचे कोई हो तो औलाद से पूछा जाए। जिस रसूल की मोहब्बत सबसे ऊपर है उसके लिए किससे पूछा जाए। ये है पैगाम इस कॉन्फ्रेंस का, और इस पैगाम को सीने में लेकर के जाओ, इसे पालो। किस्मत नसीब ऐसा कर डाले तो फिर भारत की धरती को ऐसे नापाके को रहने न दिया जाए। ये देश प्रेम और हुब्बुल वतनी का भी तकाजा है, हमारे पैट्रियटिज्म का भी तकाजा है, और हमारी इस्लाम पसंदी और इस्लाम पढ़ाई और सादात किराम की तरह मुबारक